गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फाइलम एनिलिडा के बारे में देखेंगे और इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। तो समय न गंवाते हुए चलते हैं फाइलम एनिलिडा की तरफ। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। दिस फाइलम एनिलिडा इज़ मेड बाय लैटिन वर्ड, दैट लैटिन वर्ड इज़ एनिलस, which means little ring, and the another word is idas. This means form, means the living animal or living organism which belongs to phylum Annelida. That body is ring like and segmented. Now we will come to the characters of this animal. Due to this reason, means little ring, this reason this animal is commonly called as ringworm. Now let's come to the point. Point 1, these animals are live in aquatic medium or terrestrial medium. Some animals live in holes and some also animals are parasitic in nature, means they are aquatic, terrestrial, some live in holes, कहने का मतलब बिलों में, and some are मतलब कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर। तो ये इसका फर्स्ट कमेंट हो गया। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी बॉडी जो होती है वो टिप्लोप्लास्टिक होगी। पहले से ही टिप्लोप्लास्टिक बॉडी हो चुकी है एनिमल में, तो यहाँ भी होगी। नाउ द बॉडी इज टिप्लोप्लास्टिक, मीन्स इन द बॉडी 3 layers आर प्रेजेंट। द बॉडी इज टिप्लोप्लास्टिक, and if we cut this animal in a plane longitudinally, then we find that this animal divides into 2 equal parts, lateral side to the lateral side. Due to this reason we can also call this bilateral symmetry, means the body is diploplastic and bilateral means the symmetry is bilateral. Now the third point, the body is an outer covering is present to the body of this animal, that is called cuticle. So we can say this, the body is covered by cuticle. This is the layer, outer covering, which is found outer side of the skin. This cuticle layer covers the skin or the body of the animal. Now next point is, in this point we will discuss about locomotion. Locomotion occur by CT. This CT is made by cuticle. CT is a rod-like structure which is present to the body of organism. Now next point, the body is elongated and cylindrical. मतलब शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, and metamerically segmented. Metamerically segmented means in this body many segments are present to the outside and segments are many in numbers. So we can say this metamerically segmented.
6 पॉइंट, इसकी बॉडी में, इसके पहले भी स्केलमिंथीज में आपको बताया था कि ट्यूब विद इन ट्यूब, वैसे वहाँ स्केलमिंथीज में लोग नहीं कहते हैं, मेनली यहाँ पर एनिलिडम्स में ट्यूब विद इन ट्यूब वाली कंडीशन को लोग अप्लाई करते हैं। तो दोनों में ही जो उसकी बॉडी होती है वो ट्यूब विद इन ट्यूब के टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पर एनिलिडा में इसको हम ज़्यादा मायने देते हैं। तो यहाँ भी इसको हम लिखेंगे द बॉडी इज़ ट्यूब विदिन ट्यूब द बॉडी इज़ ट्यूब विदिन ट्यूब प्लान, मतलब इस प्लान में ये पाया जाता है, ट्यूब विदिन ट्यूब प्लान में पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्टेट होती है। बिकॉज ये चाहे लिखें चाहे ना लिखें, आप जानते रहेंगे कि ये ट्यूब विदिन ट्यूब प्लान क्यों होता है। बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड and mouth and anus are present. That mouth and anus are situated to the opposite side, anterior and posterior side of this animal. And also if we see this elementary canal in the body, then we see that here this is the body and this is the elementary canal, means here a large tube, and inside this elementary canal is also a tube like structure. We can say this tube within tube structure. Now next point is respiration through gills or respiration through gills or skin. Now next point is excretion. What is the organ by which excretion takes place? That organ is called metanephridia, means excretion takes place by metanephridia. Now next point, if we discuss about nervous system, then nervous system is made by nerve ring, nerve cord, and segmental ganglion. कहने का मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम में आपका नर्व रिंग पाया जाता है, जो ये सबसे शीर्ष भाग पर हेड रीजन में होगा, और उसके बाद नर्व कार्ड, ये पेयर्ड होते हैं, वन पेयर में होते हैं, और जगह जगह पर इनको बीच में जोड़ने के लिए यहाँ पर गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में। They are unisexual और बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब इसमें कुछ एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय बडिंग होता है। बडिंग के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by budding in some animal। किसी एनिमल में, कुछ एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद यहाँ पर बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किसी में लार्वल स्टेज पाई जाती है और किसी में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। मोस्टली तो लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, लेकिन अगर लार्वल स्टेज पाई जाती है तो उस लार्वा को हम क्या कहते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोको लार्वा
Trophophore larva is present. Trophophore larva is present अगर किसी किसी में लार्वल स्टेज पाया जाता है तो उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। और इसमें अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर आप ब्रैकेट में थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, व्हेन लार्वा इज़ प्रेजेंट। अगर लार्वा किसी किसी के लाइफ साइकिल में प्रेजेंट है तभी ट्रोकोफोर लार्वा होगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर एग्जांपल जो हो गया वो फेरेटिमा हो गया, लीच हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम एक आपका छूट रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, closed type circulatory system is present. Example, फेरेटिमा, इसका पूरा नाम फेरेटिमा पोस्टुमा, आप चाहे तो लिखें चाहे तो रहने दीजिए। और दूसरा जो है वो हिरुडिनेरिया, तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। आप इनको लिख लेंगे, समझने में कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।